Good morning, students. Today we will be studying the new subject, that is self-development and art appreciation of 9th standard. This chapter is there in 9th standard. It is not having any examination, so evaluation point of view, it is having no marks, but you will get great points on this. Self-development and art appreciation. Beautiful subject. Self-development. क्या समझ में आता है सेल्फ डेवलपमेंट से आप? Come on, any one of you. What do you understand? Developing ourselves. Yeah, knowing about yourself. Very good. And art appreciation? Art is art. Right? और appreciate करना मतलब उसकी तारीफ करना. तो ये दो चीजें हम इस बुक में पढ़ते हैं. Now, this is the first page of your book, जो इस प्रकार से नजर आता है. And you have not, you need not buy any book right now because I will give you a soft copy and I have made a presentation also. So, only with the presentation आपका काम हो जाएगा. ठीक है? सेल्फ डेवलपमेंट एंड आर्ट अप्रिसिएशन 9th स्टैंडर्ड की बुक है. इसमें हम जो चैप्टर्स वी विल बी रीडिंग विल बी दीस. राइट? Yes. My identity. The first chapter you will read will be my identity. Then second one is growing up. Third one is value. And fourth one is social leadership. Very important, my identity. हम अपने बारे में ही नहीं जानते हैं. So we are person who know about everything. इंडिया में क्या हो रहा है, आउटसाइड क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, कौन सी टीचर क्या पढ़ा रही है, कौन सी टीचर कैसी है, कौन सी पड़ोस वाला कैसा है, ये है वो है, सब मालूम है. बट हम अपने बारे में ही नहीं जानते. वी हैव वेरी मच लो सेल्फ अवेयरनेस. हमको अपने इमोशंस को मैनेज करते नहीं आता. हमको हमारे स्ट्रेंथ्स और हमारे लिमिटेशंस के बारे में मालूम ही नहीं है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, come on, any one of you, give me one answer. What is your strength? Any one of you. See, this is what happens. हमको मालूम ही नहीं कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है. और how many of you compare with each other? How many of you feel कि हाँ वो मेरे से ज्यादा अच्छा है, पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, he is better, he is doing much better, his parents are more supporting. How many of you feel like that? He is better than me. Come on, tell me. Very good. Abhay says that he feels. Yes, sir. Mrinal also. Very good. Teacher, I also. Yes, Ash. You also I feel. also teacher. Yes, this is what happens. I also, teacher. Very good. Very good. Now you realize that, yeah, this is the age when we have this kind of feeling. We feel the other one is better than us. We are not that perfect. We are not that nice. A sense of some self, you can call it like, अपने आप के बारे में कुछ तो लो फील करते हैं हम लोग. एंड टुडे वी विल ट्राई टू लर्न ऐसा क्यों होता है, क्या है ये. ठीक है? सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे. एंड यू हैव टू मेक ए नोटबुक फॉर दिस. नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर. ये जो नोटबुक के पेजेस आप बनाएंगे, इसके बेस्ट, और इसको आप फॉर 3 पीपीटी के फॉर्मेट या 3 स्क्रीनशॉट्स, प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे भेजेंगे. हम उसमें से कुछ स्पेसिफिक पेजेस को चूज करके उसको नन्हे कदम में वापस से डालेंगे. दैट विल बी नोइंग माई सेल्फ, जिसके भी अच्छे रहेंगे. एंड इट हैज गॉट नो लिमिटेशंस. 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग नहीं. लास्ट क्लास में देयर वर नियर अबाउट 100 or more than that. You are something like 34. So 150 के आसपास भी अगर students, they give me very beautifully what they know about themselves, my identity, and you will make nice PDF बना के भेजो. I will put that in the form of video and put it in the नन्हे कदम कि हर बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है. Right? And you have to participate.
आपको you know that 10th तक के तो आपको भी classes नहीं है, so you have got all the full free time. Let us utilize this free time for that, right? So I will start with the presentation. I will present my screen. Okay? I'll present my screen with you. And after that, entire screen. Yes. Can you see my screen, please? Let me know. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, We Yes, see teacher. your screen. yes. Yes, teacher. Thank you. Now, so I will be presenting a slideshow to you. And this is the first page of your textbook, right? This is the first page of your textbook. You have to write your name, your class, and your division. And that will be your first page of your notebook also. You need not buy a book and then stick it. No. I just felt कि पहला page कैसा दिखेगा. You can just write the name of the subject, class 9th and all. And you, if you want, you can draw something. Whatever you feel like. It's not like this textbook only. सेल्फ डेवलपमेंट एंड आर्ट अप्रिसिएशन में आपको जो लगता है आप उस जगह पे ड्रॉ कर सकते हैं. नाम, क्लास, डिविजन लिखेंगे और ये फर्स्ट पेज बनाएंगे. ठीक है? We go to the next page. Now see what is this? My identity. Extremely important thing is your identity. If I ask you what is your identity, come on, any one of you, what is your identity? See, there is no answer because you're not getting that answer. It's not that you don't want to answer. But अगर आपसे पूछा जाए कि what is your identity, what are you, तो आप ऐसे बीच में अटके हुए. Yeah? If anyone is asking me what is my identity, I will say I am a teacher. I am a student. Yeah, very good. I am a student. Excellent. Somebody else? That's what happens. Now, in your identity, you have to study. देखो क्या हो रहा है ना, हम दुनिया में सबको जानते हैं, बट हम अपने आप को ही नहीं जानते. It is so difficult that we know everyone. We don't know anything about our own self, and we feel very sorry that when, as a teacher, I feel very sorry that you are such a nice person and you don't know who you are. So let us meet our own self in the first chapter, My Identity. So what you will do? Nicely paste your picture. ढूंढ के निकालो. ड्रॉ कर सकते हो. मस्त, अभी तो बहुत सारा टाइम है. एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो if you can. And if you cannot, must paste your picture. First chapter is there. Self-awareness. अपने बारे में जानो ना. अपने बारे में पता करो कि तुम कौन हो. तुम कैसे हो. तुम किस प्रकार से रहते हो. तुम किस प्रकार से फ्रेंडशिप करते हो. तुम किस प्रकार के दोस्त हो. तुम किस प्रकार के बेटे हो. तुम किस प्रकार के भाई हो. तुम किस प्रकार के इंसान हो सबसे बड़े. है ना. सो नो अबाउट योर ओन सेल्फ. फिर सेल्फ मैनेजमेंट. कभी कभी हम ना कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर जाते हैं. हम वो होते नहीं है. हमको लगता भी है कि यार मैंने इस तरह से कैसे बात कर ली इससे, और फिर हमको बुरा लगता है. हम दोस्तों से झगड़े होकर लेते हैं कई बार, because we don't know how to manage our own self. So in this chapter we will learn how to manage our own self also. In the third part which we will read, accepting the difference. We all are different. और हमको अपने differences को accept करके चलना है. हमको उनको देख कर, उनको समझ कर, उनको आगे लेकर जाना है. Right? We have to accept how and what we are. I'll explain you about that, and then I'll be sure that ये जो प्रॉब्लम थी ना थोड़ी देर पहले कि हाँ मैं थोड़ा सा कम पड़ जाता हूँ, वो सुधर जाएगी. ठीक है. हम इस समय सुधारने कुछ भी नहीं बैठे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू. दिस इज नो एग्जाम विल बी टेकन. राइट. You have to submit the work which you do, and according to me all of you are having a grade in that, because you all are unique beautiful people. हम बहुत बहुत अच्छे हैं मेरे स्टूडेंट्स. सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज माय नेम. आपका नाम क्या है.
आप अपने दोस्तों के साथ वाली एक अच्छी सी पिक्चर लगा सकते हैं, एंड देन यू कैन राइट व्हाट इज माय नेम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर नेम, डू यू वांट टू चेंज योर नेम? अगर आपको नाम चेंज करना है तो व्हाई? Would you still be the same person if you had a different name, and why? Now, we will take an example, right? Kuldeep. Kuldeep is there in the class? Okay. This is better. Kuldeep is not there. Kuldeep. Kul matlab kya? पूरा फैमिली, कुटुंब, कुल. दीप मतलब दिया. वो इंसान जो पूरे कुटुंब में दिया बनकर अंधेरे को, डार्कनेस को हटाएगा, उसको हम कुलदीप कहते हैं. ब्यूटीफुल नेम. सविता कॉमन नेम है, मीनिंग होता है सूरज. माय नेम नितिना. So many of you they say also, नितिना तुम्हारे नाम के तो कोई दूसरा व्यक्ति देखा है नहीं. नितिन बहुत देखे बट नितिना कहीं नहीं देखा. आपने देखा नितिना नाम का कोई व्यक्ति? नो टीचर. मैंने भी नहीं No देखा. teacher. टीचर टीचर हाँ, बोल. टीना टीचर. हाँ, फिर से बोलो. टीचर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम? यस, आई विल टेल यू नेम. यस, मेरे नाम का मतलब बताती हूँ मैं आपको. देखो, नीति. नीति शब्द आपने बहुत बार सुना है. राजनीति में भी नीति आता है. राज्य करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लॉजिकली थिंकिंग के लिए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको नीति बोलते हैं. And the one who is full of niti, rules and regulations and logics, is called Nitina. Such a beautiful name, isn't it? मालूम नहीं था, है ना? मैडम हाँ, yes, yes. Somebody said something. Somebody said something. No. Okay. So we will continue with our own class. चलो. तो आपके भी नाम का मतलब है यश. यश का मतलब होता है कीर्ति. कीर्ति मतलब किस तरह से आपकी ख्याति, कीर्ति बढ़ती है, उसको यश कहते हैं. अब आपको सबको क्या करना है, वापस गूगल. पूरा टाइम तो नेट पे रहते हैं, एक बार गूगल कीजिए. फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ योर नेम. राइट इट डाउन. डोंट सी इट फ्रॉम वन साइट में से मत देखो, 3-4 साइट में से मीनिंग निकालो. And then find out the meaning of your name. आपके माँ पिताजी ने आपका नाम इतना सुंदर क्यों रखा था, राइट? आपको इतनी खुशी होगी कि आपने, मम्मी पापा ने इतना अच्छा नाम रखा. क्यों रखा? क्योंकि वो चाहते थे हम ऐसा बने, और हमको वैसा बनना है. हम बन जाएंगे, और हम हैं, क्योंकि हमारा नाम वो है ना? कोई भी देखो, कोई भी इंसान है ना, अपने नाम के हिसाब से बिहेव करता है. अगर कोई मुझे घर से जानता है तो उसको ये मालूम है कि मेरा एक निकनेम है, नीतू नाम है मेरा घर का. तो मैं, अगर मुझे कोई नीतू करके आवाज देता है ना, तो माय बिहेवियर इज टोटली डिफरेंट. सब मैं आंटी, घर की मम्मी, दीदी, बहन, इस प्रकार से बिहेव करती हूँ. मतलब मोमेंट आप मुझे नितिना बोलते हैं, मुझे याद आता, ओ आई एम अ टीचर ओवर हियर, आई एम नितिना दिस पर्सन एंड आई हैव टू बिहेव लाइक दिस. आप भी देखो ना, किसी का घर का नाम होगा, कुछ भी होगा, गोटिया, सनी, लवली, प्रीति, पिंकी, ऐसे नाम रहते हैं छोटे छोटे. वो नाम जब आपको बुलाया जाता है तो आपका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है. और वैसे जब आप अलग से रहते हैं तो आपका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो नाम को बहुत मतलब होता है. अपने नाम को अगर चेंज करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, और अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. आप अपने बारे में लिखिए, अपने नाम के बारे में लिखिए, और आपकी आइडेंटिटी सबसे पहली आपका नाम है बेटा. आप स्टूडेंट हैं या टीचर है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है. आपका प्रोफेशन आपकी आइडेंटिटी नहीं है. आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है. आप किस प्रकार के इंसान हैं, वो आपकी आइडेंटिटी है. नाम, पैसा, नौकरी, ये सब बाद में मिला है.
जो सबसे पहला, आप खुद को अगर आप पहचानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओ, मेरे साथ जो आखिरी समय तक रहेगा या जो मुझे हमेशा सबसे पहले मिला, मुझे एनकेएस में नौकरी मिली, नो डाउट अबाउट इट, बट एक समय आएगा जैसे 58 ईयर्स के हो जाओगे, मुझे बोला जाएगा यस मैडम नाउ यू कैन लीव, बस आपकी नौकरी का टाइम खत्म हो गया. देन आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ अ टीचर. Yeah, I won't call myself a teacher of NKES, isn't it? तो मेरी नौकरी या मेरी टीचिंग प्रोफेशन मेरे साथ जन्म के साथ नहीं आया ना. जन्म के साथ जो चीज मुझे मिली वो मेरा नाम था और वो मेरी पहली आइडेंटिटी है. Isn't it? Yes, teacher. Are you liking the subject now? Is Yes, it teacher. interesting? How many of you say yes? Yes, Let teacher. me see. Yes, teacher. Yes, Yes, teacher. teacher. Shall we continue or we should stop over here? Yes, Continue. Continue, Continue. teacher. Okay. Continue. Okay. चलो. Yes, बेटा. Thank you. तो फिर हम आगे देखते हैं. Experience help to shape your personality. List them to complete the activity. आपको ये करना है. Right? Experiences shape your personality. Very important thing. Here now, I will tell you some stories from my life. Similarly, you have to list some stories from your life in this format. आपको experience लिखना है और उससे हमने क्या सीखा. It can be in tuta-futa English also. Here I'm not going to check your English. First of all, let me be very clear. If you find it very difficult to write in English, you can write in Hindi too. Right? But I will prefer reading in English because it's an English medium school. Right? You can, if you find it difficult to write in rough and then make it a fair copy. किस प्रकार से बुक बनाएंगे. आपको बुक बनाना है, बुक बनाइए. A4 साइज का पेपर लेके आके उसमें लगाना है, लगाइए. चिपकाना है, कलर पेपर, चार्ट पेपर्स लाके लगाइए. योर विश. मुझे आपको दिखाना था ये चैप्टर, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाने की जगह मैंने प्रेजेंटेशन बनाया. I have set an example in front of you, making a presentation beautifully, putting hours together to make that presentation. I expect the same thing from my students too. They will present their things to me in beautiful way. They will take the pictures. If they can make a PPT and send, excellent, nothing like it. We are going to club all that together and again convert it into ebook of Nanne Kadam, my life, my personality, my identity. बुक बनाएंगे और उसको रिलीज करेंगे. मे बी इन 3 parts और 4 parts, आई डोंट माइंड. आप जितने लोग बना के भेजेंगे सब डालेंगे हम. ठीक है. एक्सपीरियंसेस. लाइक फॉर फर्स्ट एग्जांपल आई गिव यू माय ग्रैंडमदर. उनका एज काफी था. आई वाज इन समथिंग लाइक 8th standard और हमारे यहाँ उस समय में मोबाइल फोन्स वर नॉट देयर. इवन फोन्स वर वेरी रिस्ट्रिक्टेड. जब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो तो फोन करते थे, अदरवाइज लेटर्स चलते थे उस समय. I used to write inland letter, and I was very fond of my nani, and my nani was also very fond of me. She used to love me like nothing. So every Saturday, I used to write a letter to my nani and post it, and by next Saturday, it used to reach her. So once she told me कि देख बेटा एक प्रॉब्लम हो जाती है तेरे लेटर में, आधी समझ में नहीं आती है. कहा आधी क्यों समझ में नहीं आ रही है. So she told me that what happens is you write sometimes English words also, क्योंकि हम लोग बात उसी प्रकार से करते हैं स्टूडेंट लाइफ में. When I come to talk to you, normally I am supposed to talk only in one language, but I find my students more comfortable when I talk in both the languages. So I have shifted to that language so that you be comfortable, right? So when I was writing letter in Hindi to my nani, लिखते लिखते कभी कभी, मोस्ट ऑफनली तो नहीं बट कभी कभी इंग्लिश के कुछ शब्द आ जाते थे. राइट. बोलते समय भी हम लोग देखो कुछ इंग्लिश के शब्द बोल देते. तो उस वजह से वो इंग्लिश के शब्दों को पढ़ नहीं पाती थी. एंड शी यूज्ड टू फील कि यार मैं वो पढ़ नहीं पा रही. दैट वाज वन एक्सपीरियंस व्हिच टॉट मी दैट व्हेन आई स्पीक colloquially, it's okay. But when I write, I should write only in one language. And
that was the time I realized that I should work on my language skills very much. And then that was the time I realized that yes, I have to work on my language. So I have to read certain books so that my vocabulary is very nice. I read more, I can comprehend better, I can understand better. So reading was something which I should do. I learned at that time. Then only I can write the, you know, that I write poems also, right? You have heard those poems somehow here and there. So, and when you go out for after 10th standard, your send off, then I will write a poem for your class also. So, that was the experience, and I have learned the language skill is very important. Similarly, we have lot of experiences. Right? तो ये experiences से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? तो आपके पास भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है क्या? किसी के पास कोई मुझसे शेयर करेगा क्या, जिसने आपकी लाइफ में चेंजेस लाया? किसी को शेयर नहीं करना है? यश, पियानो कब से बजाना सीखा? ऑर्गन कब से बजाना सीखा? Teacher, from last 6 years. लास्ट 2-3 इयर्स से बजाना सीखा है? 6 तो years, कुछ teacher. तो हुआ 6 होगा ना years. जिसकी वजह से तुमने सोचा कि मैं अभी ऑर्गन बजाऊंगा या मैं म्यूजिक में जाऊंगा. Teacher, I have started playing music, teacher, with Manish from last 6 years. 6 years. ओके, मनीष के साथ लास्ट, तो कुछ तो हुआ होगा ना जब अपने मनीष के साथ बजाना चाहिए ऐसा सोचा होगा. याद करके Teacher, देखो. हाँ teacher, playing combination proper होता था. हाँ, कंपटीशन प्रॉपर होता था. ओके, अमित, अमित, यू आर देयर? कमलेश, आर यू देयर? Yes, teacher. हाँ, अमित, तुम और कमलेश, तुम भी अपने जीवन में एक ऐसी घटना बताओ जिसने तुमको हिला के रख दिया या उसने कुछ तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, ऐसा कुछ? Yes, teacher. हाँ बोलो. टीचर में हम लोग का कबड्डी मैच था, तो हाँ? फिर टीचर सिर्फ ये मैं वेदांत हम लोग कुछ 2 लोग सिर्फ अच्छा खेल रहे थे और हाँ. बाकी सब टीचर बच्चे जैसे थे वो लोग ने हरा दिया. उस दिन कुछ सीखा था क्या? हाँ टीचर, क्या सीखा? किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए. हाँ, किसी को कम नहीं समझना चाहिए. देखो कितनी अच्छी बात बताई उसने. और वेदांत, तुम्हें कोई आइडिया है ऐसा कुछ? कबड्डी तो हो गया, और कुछ और? चलो एक और कहानी सुनाते हैं आपको. एक, टीचर जब हम लोग फर्स्ट टाइम वॉलीबॉल खेलने गए थे, हाँ, तभी भी वो टाइम पे यही हुआ था. आप लोग लंबे लंबे थे और छोटे छोटे बच्चों ने हरा दिया था. हाँ, हमने बहुत प्रैक्टिस किया था. हमें लगा कि हम बहुत अच्छा खेलते हैं, हम लोग जीत जाएंगे हमसे. और वहाँ जाने और पता चला कि हमसे भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो. हाँ, देखो कैसा होता है कंपटीशन में जाने से. अब देखो 2 चीजें हुई यहाँ पे. एक तो आपको कंपटीशन में जाने के बाद पता चला कि हमसे बेटर भी हैं और हमको ज्यादा अच्छा करना है. और दूसरा, कभी कभी ना हमें घमंड एक ऐसा आ जाता है कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये चीजों को समझना है ना. ऐसे 3 अपने जिंदगी के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस को लिखोगे. और क्यों लिखोगे? क्योंकि आपको आपके बारे में सीखना है. आपको ये सीखना है कि आप किस प्रकार के इंसान बन गए. फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. आप लोग ये जानते हैं कि नितिना टीचर स्ट्रिक्ट है मगर बहुत फ्रेंडली भी हो जाती है कई बार, है ना. एंड आई अलाउ यू टू टॉक ऑल्सो. मैं बहुत बहुत बार अलाउ करती हूँ आपको कि आप बात कीजिए मुझसे. उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था. मेरे साथ का एक किस्सा सुनाती हूँ. मेरी एक फ्रेंड थी,
वो और उसकी मम्मी दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं उनके घर में हमेशा आती जाती रहती थी। वो लड़की का हमेशा कंप्लेन था, मेरी मम्मी हमेशा डांटती रहती है, चिल्लाती रहती है, मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करती। और वो हमेशा अपनी मम्मी की बुराई ही करती रहे, आज मेरी मम्मी ने ऐसा कर दिया, मेरी छोटी बहन को ज्यादा प्यार करती है, मुझे कम करती है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल दिया उसने। मुझे हमेशा हमेशा लगता रहा। तो फिर एक दिन जब मैं आंटी के पास गई तो मैंने आंटी से पूछ लिया, आंटी ऐसा क्या है कि वो आप उससे इतना नाराज रहते हो? तो आंटी ने मुझे बहुत अच्छी चीजें समझाई एंड आई फेल्ट कि आंटी भी उसको डांटती है नो डाउट, बट उसको प्यार भी उतना ही कर रही है। तो वहां दोनों वो, अच्छा वो अपनी मम्मी को भी प्यार बहुत करती थी, राइट? वो अपनी मम्मी को प्यार बहुत करती थी। एक सेकंड ना, मुझे पीछे से कॉल है। हाँ सर, हाँ सर, लेके आती हूँ। यस सर, सर मेरा क्लास खत्म करके आती हूँ। ओके सर। So we will come to the topic. Very 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 important thing. मैंने जब उनसे बात किया तो मुझे ये पता चला कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते और एक दूसरे को बता ही नहीं पाए। मम्मी ने कभी बेटी को नहीं बताया कि वो उसको बहुत प्यार करती है और बेटी ने कभी मम्मी को नहीं बताया कि वो उसको बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जब गलतियां होती थी तो प्यार से समझाने की जगह जोर से चिल्लाते थे और दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते थे। तो वहां से एक चीज तो सीखने मिल गई कि अगर कभी कभी हम बात कर लें तो चीजें आसान हो जाती है ना? हमारे फ्रेंड्स में भी कई बार ऐसा होता है, किसी से हम नाराज हो जाते हैं, बात नहीं कर रहे होते हैं, वो भी परेशान, हम भी परेशान रहते हैं। बट बाद में थोड़ी देर बाद जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो पता चलता है कि ओ यार, व्हाई डिड आई डू इट, ये तो बहुत अच्छा है और उससे लड़ाई करके मैं खुद ही दुखी हो गया। तो कई बार एक्सपीरियंसेस हमको सिखाते हैं। एक एक्सपीरियंस तो मैंने आपसे ये शेयर किया कि जब हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। तो लाइक दैट 3 एक्सपीरियंसेस आप लिखेंगे और उसमें से आपने क्या सीखा। एक दूसरे की कॉपी नहीं करेंगे, अपने एक्सपीरियंस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वी वांट टू नो व्हाट आवर आइडेंटिटी इज, राइट? पीपल हु इंस्पायर मी, नेम एट लीस्ट 3 पर्सन हु इंस्पायर मी। इट कुड बी एनीवन, राइट? इट कुड बी एनीवन। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आप किसी भी सेलिब्रिटी के साथ में देख सकते हैं, राइट? पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज, एनीबॉडी एल्स। 3 ऐसे लोग जो आपको इंस्पायर करते हैं और जिनसे हम इंस्पायर होते हैं हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फोटो डाला है मोदी जी का, यस आई गेट इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सन। कहाँ से उठ कर आया है वो और कितनी प्यार से काम करता चला जा रहा है। लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लोग उसको कुछ भी बोल रहे हैं, ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। मुझे मेरा काम करना, मैं मेरा काम करना, राइट? सिमिलरली आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय माई ओन फादर, राइट? मेरी कई चीजें अपने फादर की जैसी होती है। तो आप भी किसी फादर, पेरेंट, मदर, किसी टीचर, किसी ना किसी से इंस्पायर होंगे और उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो यू हैव टू लिस्ट देम। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू नो योर आइडेंटिटी। आप क्या हैं, राइट? अब आप क्या करेंगे? इमोशंस एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात क्या है? इमोशंस एंड फीलिंग्स ऐसी होती है बेटा कि इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, राइट? जब किसी को दुख होता है और सामने वाला भी रोने लग जाए दुख देख के, तो हमको समझ में आता है ना, बहुत कमजोर दिल का है यार, ये बहुत नरम दिल का है। अब किसी को मार लग गया और वो सामने से खड़ा होके हंस रहा है कोई व्यक्ति, तो हमको लगता है ना कितना बेकार है, इससे तो दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आपके फ्रेंड्स भी आपके दुखी में, दुख जब होता है तो दुखी हो जाते हैं, जब आप खुश है तो खुशी हो जाते हैं। तो इमोशंस एंड फीलिंग्स आपकी किस प्रकार से हैं वो आप लिस्ट करेंगे, किसी की कॉपी नहीं मारेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
राइट. बाय इवनिंग मैं ये वीडियो जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया हुआ है गूगल क्लास, दैट आई विल बी अपलोडिंग इन माय यूट्यूब, प्रोवाइडेड आई एम एबल टू रिड्यूस द नॉइज. ये नॉइज रिड्यूस करके आई विल ट्राई टू जस्ट अपलोड दिस. From that you can see what questions are there, or you can take the screenshot and start working on that also. Right? Emotions, feelings, बहुत important है. Your emotions and your feeling play a very important role in deciding how you behave in different situations, and this makes you unique. Right? एक बार की बात है, I don't know you know it or not. मेरा एक स्टूडेंट है, नाम I will not take. स्पोर्ट्स डे था और उसके पैर में कुछ पत्थर घुस गया था. उसके पैर के तलवे में था, मतलब दैट लोअर पार्ट ऑफ द फीट, उसमें वहां उसको मार लगा हुआ था. और उसके बाद उसको वहां पर फर्स्ट एड देनी थी. और मैं वहां पे थी, तो मैंने उसको बोला कि ला मैं इसको साफ कर देती हूँ. तो वो उसका ऐसा था, नहीं नहीं टीचर मेरे पैर को हाथ नहीं लगाना. एंड आई वाज लाइक व्हाई, यू आर ए स्टूडेंट, मार लगा हुआ है ना, ठीक है, मेरा पैर बाद में तुम छू लेना, टीचर ने पैर को हाथ लगा दिया कर, बट मुझे उसको साफ करने दो. तो मैंने उसको साफ करके मलहम लगाया और मलहम लगा के उसके पैर में पट्टी बांधी. तो आज भी उसने उसके बाद मुझे एक ऐसे ही मजाक मजाक में नाम दे दिया, मेरी अच्छी वाली टीचर. आज भी मुझे मेरी अच्छी वाली टीचर करके ही बुलाता है. मुझे नहीं मालूम उसको क्या है, बट दैट सिचुएशन और उसकी जो यूनिकनेस थी वो आज भी है. ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं करते, सब करते हैं. हर एक इंसान अलग तरीके से बिहेव करता है. कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत गुस्से में आते हैं और फिर मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर लेती हूँ, आप ठीक हो जाते हैं. या कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हाँ ये समझ जाए और मैं नहीं समझती. सो यूनिकनेस हर इंसान की होती है. सिमिलरली व्हाट आर योर यूनिकनेस, वो आपको ढूंढना है. राइट? इन योर नोटबुक राइट अबाउट हाउ यू फील इन द सिचुएशन गिवन बिलो. कुछ सिचुएशंस आपको दी हुई है. हाउ यू बिहेव, आप किस तरह से बिहेव करेंगे उन सिचुएशंस में, यू हैव टू राइट. You may behave differently in same situation when you are angry, happy, or scared, or sad. It is important to be aware of how you feel in different situations. अगर आप गुस्से में हैं तो आपकी फीलिंग अलग रहेगी, अगर आप खुश हैं तो आपकी फीलिंग अलग रहेगी, अगर आप डरे हुए हैं या सैड हैं तो आपकी फीलिंग अलग अलग रहेगी. So that is the most important thing. You should know which kind of feeling what you have, because you want to know what you are. What is your identity? Who as a person you are. Once you know that this is my good point, this is my bad points, or good and bad points collected, you can become a very successful person. The first one, somebody challenges. किसी ने challenge किया, so you to do something, right? किसी ने challenge किया आपको, तो ये करके दिखा, जो बहुत difficult है, unfamiliar भी है. So how do you behave? Enthusiastically? Yes, yes, I can do it. You are afraid? बाप रे कैसे करूं? नम, डर लग गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे बाबा मेरे से नहीं होगा. Nothing, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तू कितना चैलेंज करता रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. How do you behave? That is one way you will come to know what kind of person you are. If somebody is challenging me, I will see whether it is worth challenge accepting or not. Somebody says that तू इतना percentage लाके दिखा, I will accept. कोई बोलेगा ट्रेन के ऊपर खड़ा होके दिखा, I won't accept that, because that is foolishness, isn't it? It is an unfamiliar and difficult situation which is not worthy to do. ये हमको देख के निकालना है. इस तरह से अगर आपने एक कंपटीशन को लूज किया तो आपको क्या फील होता है? डिसअपॉइंटेड रहते हैं, एंग्री रहते हैं, जेलस रहते हैं, और कुछ और अलग फीलिंग आती है, राइट? एंड दिस इज ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट बेटर, इस प्रकार की फीलिंग आती है. डोंट राइट फेक आंसर्स, राइट व्हाट यू फील. जब आपने कोई कंपटीशन में गए और आपके दोस्त जीत गया, आप नहीं जीत पाए, आप हार गए, तो आपको कैसा फील होता है? राइट इट. एंड यू कैन स्टिक पेपर्स एंड राइट नाइसली. मस्त बनाओ उसको. यू कैन मेक ए पीपीटी आल्सो इफ यू कैन, नॉट नीडेड दैट आपको सब कुछ नोटबुक पर पेज और पेपर पे करना है. अगर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इट्स ओके फॉर मी. Somebody praises you for something. आपको अगर बहुत तारीफ मिलती है तो आप कैसे फील करते हैं?
You are proud. You feel that you are superior to others. You feel nothing, or you have any other feeling. For example, if I ask myself, I never feel that I'm proud or superior to somebody else. I feel that I have got no more responsibilities. Yeah, somebody is praising, that means I'm supposed to do better than this. I'm never proud. I never feel that yes, I'm superior to somebody. You know that अभी laptop मिला है school से, right? Because of the work and the prizes which we got this year. So I should be proud? No. I feel superior? No. I feel that now there is much more responsibility on me. I have to fulfill those responsibility, do better work. Right? Somebody criticizes you. अगर आपको कोई बुरा बोलता है, for something, you feel sad, or you feel angry, or you feel inferior to others, or you feel disappointed. Right? अगर आपको कोई criticize करता है, example, अभी 10th स्टैंडर्ड के एक बच्चे की बात है, वो आया, उसके मार्क्स बहुत कम थे, लाइफ आस्क्ड दैट बॉय, क्यों रहे तेरे मार्क्स इतने कम है? तो ही सेड दैट मेरा भाई ना मुझे, अच्छा दोनों भाई मेरे हाथ के ही पड़े हुए, द एल्डर वन आल्सो, द यंगर वन आल्सो। तो वो उसने स्टार्ट किया, टीचर आपको मालूम है कि टीचर वो बड़ा वाला मेरे को ऐसा बोलता है, मेरे को हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है, फिर वो ऐसा बोलता है ना, मेरा दिमाग खराब होता है, मेरे को पढ़ाई करने का ही मन नहीं होता। He told me this story. But what happens to you? Like, he has to understand that if somebody is criticizing me, I should not feel sad, I should not feel angry, I should not feel inferior to others, I should not be disappointed, but I should take it positively. Good, he told me this mistake. Next time I will not do it. Isn't it? Next. हम लोग एक साथ दो देख लेते हैं. You are alone in the house. घर में कोई नहीं, अकेले बैठे हो, कोई साथ नहीं है. You are feeling at ease, dull, restless, or anything else. या आप एक क्राउडेड प्लेस में हैं, एक बड़ी सी बर्थडे पार्टी में या ऐसी कई जगह गए हैं जहां आपके दोस्त नहीं है. What do you feel at that moment? So all these questions you will get single word, and if you try to sum up those things, you will come to know what is your personality. You are timid, you are extrovert, you are enthusiastic, you are a jealous person, and don't think that if somebody is jealous that, or somebody is a proud person, don't think it's a wrong on this thing. Yeah, this is the way I am, that's it. Be true to yourself, right? Our emotions, right? Our emotions and thoughts are interrelated. Emotions और thoughts interrelated होते हैं. जिस भी प्रकार के emotions होते हैं, उसी तरह के thoughts होते हैं. We can identify which thoughts cause an extreme emotional response in us. किस तरह से, किस चीज की वजह से हमको emotional response ज्यादा आता है. We will be able to manage our emotions and extreme actions caused by them more effectively. Why I am asking you to find out what kind of emotions you are having, or what kind of person you are. Like somebody is very sensitive person, right? उसकी sensitivity ही उसकी plus point भी हो सकती है और minus point भी हो सकती है. For example, I'll tell you one story. Hey, you all are enjoying this class? Let me ask first. Yes, teacher. How Yes, many teacher. of you are enjoying teacher. it? How many of you want that it should continue for another Me, half an hour और चल सकता है? Continue. चलेगा? continue. Continue. Okay. Continue, teacher. Okay. तो एक कहानी सुनाते हैं आपको. एक राजा था, राइट? उसके पास में 3 लोग को बुलाया गया, राइट? और तीनों लोगों ने चोरी की थी. एक चोर था जिसने चोरी की थी, एक दूसरा गरीब आदमी था
जिसने चोरी की थी, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। और तीसरा एक आदमी ऐसा था जिसको, जो ड्रिंक्स करता था, और उसने चोरी की थी बिकॉज उसको उसकी जरूरतें पूरी करनी थी। अब राजा के पास जब तीनों लोगों को बुलाया गया तो राजा के पास सबसे पहले आया चोर। उसने चोर को देखा और बोला कि अच्छा इसने चोरी किया है, ओके एक काम करो, इसको 10 जूते मारो, इसका मुंह काला करो, उसको गधे के ऊपर बिठाओ और उसको पूरे राज्य में घूम कि इसने चोरी की। फिर दूसरा आया, कौन, वो जो दारूडा टाइप का आदमी था जिसने चोरी की थी उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए। उसको बोला कि इसको लो और 100 कोड़े के मार दो, 100 बार डंडे से मारो उसको और उसको छोड़ दो। और तीसरा वो गरीब आदमी था जिसने चोरी की थी क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं था। तो राजा ने उसको देखा और बोला कि मैंने आपसे ये चीज की उम्मीद नहीं की थी, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू एटलीस्ट। आपने ये काम गलत कर दिया। जब ये हुआ तो तीनों को भेज दिया गया और वो भी चला गया। और जो वहां का मंत्री बैठा हुआ था उनके साथ, उन्होंने बोला कि राजा जी, आपने एक एक चोरी तो की थी ना सबने, तो सबको पनिशमेंट भी एक जैसा दे देना चाहिए था, आपने अलग अलग पनिशमेंट क्यों दिए? तो उन्होंने बताया कि मैंने अलग अलग पनिशमेंट इसलिए दिया क्योंकि ये तीनों अलग अलग प्रकार के इंसान हैं। जैसा व्यक्ति जैसी प्रवृत्ति होती है उस प्रकार से उसके एक्शंस होते हैं। तो वो बोला मेरे को विश्वास नहीं और आप क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा। मंत्री बोला। तो राजा जी ने बोला कि ओके वेट, मैं बताता हूँ, आप इन तीनों के घर वापस जाओ और देखो क्या करते हैं ये, पनिशमेंट के बाद क्या होता है। तो पनिशमेंट के बाद ये हुआ कि जिसको चोर को जो मार वार पड़ी थी उसको गधे में बैठा के किया था, वो बढ़िया मस्त मार वार खाया, घर गया, नहाया धोया, चद्दर ताना, सो गया। दूसरा जो था उसको बहुत बुरा लगा, उसने फिर से नहाया, घर गया, नहाया धोया, जो भी था, दवाई ववाई लिया, खाना खाया, सो गया। और तीसरा था जिसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला था, उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, उसने भी घर गया, नहाया धोया, खाना नहीं खाया, दरवाजा बंद करके आराम से कमरा बंद करके रोता 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 हुआ पड़ा ही रहा। महीने भर तक पड़ा रहा, बीमार हो गया। सेकंड वाला जिसने घर बंद करके सोया था वो 2-3 दिन के बाद ठीक होके बाहर निकल के घूमने लग गया। चोर तो दूसरे ही दिन घूमने लग गया। ये बंदा जिसको कुछ पनिशमेंट नहीं दिया गया था, ये महीना भर तक बाहर नहीं निकला, बीमार हो गया, जबकि इसको पनिशमेंट ही नहीं मिला था। व्हाई? बिकॉज वो इमोशनल था। उसको उतने ही सेंटेंस ने उसको इमोशनल कर दिया, उसको दुखी कर दिया था। आई बात समझ में? तो हर इंसान अलग है, हमको अपने इमोशंस के बारे में समझना चाहिए। बात समझ में आई बच्चों? यस टीचर। Yes, teacher. हाँ, कहानी कैसी लगी? Yes, teacher. अब हमारे क्लास में भी कितने बार ऐसा होता है ना, देखो डांट पड़ती है, बहुत से बच्चों को डांट पड़ती है, कुछ बच्चों को बुरा लगता है, कुछ बच्चों को बुरा नहीं लगता, कुछ बच्चे बोलते हैं कि अरे जाने दे क्या कर सकते हैं, है ना, है कि नहीं? Yes, teacher. हाँ Yes, teacher. राइट। तो इसी को कहते हैं जैसी प्रवृत्ति जैसा व्यक्ति, जैसी प्रवृत्ति वैसा व्यक्ति। तो जो प्रवृत्ति हिंदी में होती है उसको इंग्लिश में हम इमोशंस बोलते हैं। हमें अपने इमोशंस के बारे में पता करना चाहिए। वी शुड नो। फॉर दैट आई हैव गिवन यू 3 क्वेश्चंस। थिंक ओवर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला, व्हाई डू सम पीपल फील अफ्रेड ऑफ वॉकिंग अलोन इन नाइट? बहुत से लोग ना रात में चलने, रात में अंधेरे में नहीं जाते। हाउ मेनी ऑफ यू आर अफ्रेड? इज देयर एनीवन हु इज अफ्रेड ऑफ गोइंग alone in night? Yes, teacher. Yes, teacher. चलो 1, okay 2, Yes, teacher. okay, there are few who are saying yes. So क्यों भाई? Because they think they will be robbed or something like that? आपको क्या लगता है? Because आपको रीजन लिखना है। ये रीजन की वजह से आपका वो रात को अकेले जाने का जो डर है ना वो निकल जाएगा। Next, why do people feel happy when they win a prize?
प्राइज मिलता है तो खुशी होती है कि नहीं होती है? होती है टीचर। होती है Yes, टीचर। teacher. होती है। यस टीचर। क्यों होती है प्राइज मिलने के बाद? टीचर क्योंकि उसमें उसकी मेहनत होती है और वो प्राइज मिलने पर उसकी मेहनत उसको अच्छा लगता है। हाँ, सो उसको अच्छा लगता है। और कोई है दूसरा जिसको लगता है कुछ और आंसर देना चाहिए? दूसरों से बेटर है हम दिखा सकते हैं। हाँ, तुझे नहीं मिला मुझे मिला, तुझे नहीं आया मुझे आया, ऐसा भी तो फील होता है कभी कभी कि नहीं होता है? यस टीचर। गुड, ऐसा होता है। कुछ लोगों को ये फीलिंग भी आती है कि मेरे फ्रेंड को नहीं आया मुझे आया, वेरी गुड, राइट। तो वहां से आपको अपनी एक फीलिंग के बारे में पता चलेगा कि आपके अंदर वो वाली फीलिंग भी है, राइट। They think that their efforts have yielded result. Can be one answer. I feel I am better than my friends. I feel I have made my parents more happy. ऐसा अलग अलग रीजंस आप लिखेंगे। नेक्स्ट, why do some people feel angry if they are wrongly scolded for no mistake of theirs? आपकी गलती नहीं, आपको डांट पड़ रही है, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है टीचर। आता आता है टीचर। आता है, राइट। क्यों आता है? बिकॉज आपको मालूम है कि आपने गलत नहीं किया, and you have to rewrite the reason because they think that is unjust. ये justice नहीं है। आप क्या फील करते हैं? या फिर who is she to scold me? उसको क्या जरूरत है मेरे को डांटने की? मेरे को जो करना है मैं करूंगा। आपको जो फीलिंग आती है आप लिखोगे। डोंट राइट द सेम आंसर्स, राइट। अब हमने क्या पढ़ लिया अब तक? हमने सबसे पहले पढ़ा कि आपकी आइडेंटिटी आपका नाम होता है, आपके अंदर कौन कौन से इमोशंस होते हैं, आप किसी सिचुएशन पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपके जिंदगी में ऐसे 3 कौन सी घटनाएं घटी जिसकी वजह से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे लिखने में बहुत कांटे आते थे। आई नेवर यूज्ड टू फील लाइक राइटिंग ओनली। 7th स्टैंडर्ड आई वाज देयर इन 7th स्टैंडर्ड, और 7th स्टैंडर्ड में मुझे बुलाया, मेरी नोटबुक चेक करने के लिए दी गई और मेरी नोटबुक इनकम्प्लीट थी, राइट। और मेरी फिजिक्स की टीचर, हमारे को उस समय ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग था। 8th स्टैंडर्ड, सॉरी 8th स्टैंडर्ड वाज। मेरी फिजिक्स की टीचर ने एक थप्पड़ लगाया मुझे, नोटबुक कंप्लीट नहीं कर सकती, एंड आई फेल्ट सो बैड। अरे बाप रे, मुझे थप्पड़ पड़ गई। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा नहीं। व्हाई? बिकॉज शी यूज्ड टू राइट ऑन द बोर्ड एंड आई यूज्ड टू सपोज टू कॉपी इट डाउन। मुझे कॉपी करने का था और मैं पीछे बैठती थी, मेरी हाइट कम थी और मुझे दिखता ही नहीं था बोर्ड पे, मैंने कॉपी नहीं किया। तो दैट वन थप्पड़ वाज लाइक वेरी मच, सारे क्लास के सामने थप्पड़ पड़ गया यार। इट वाज सच ए बिग थिंग दैट हैपेंड टू मी एट दैट मोमेंट। अभी सोचो तो क्या है, एक थप्पड़ ही तो पड़ा, उसमें कौन सी बड़ी बात थी, बट इट वाज लाइक इंसल्ट एट दैट मोमेंट, बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई। एंड देन आई डिसाइडेड कि अच्छा नेक्स्ट टाइम से ना ये जो लिखेगी ना मैं इससे पहले लिख के छोड़ूंगी। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग वेरी फास्ट। सो टुडे आई कैन राइट वेरी फास्ट, बट आई कैन नॉट राइट नीट बिकॉज मैंने वो एक चीज डाल दी थी अपने दिमाग में कि मुझे तेज लिखना है। साफ नहीं है तो भी उसका प्रॉब्लम है, उसको पढ़ने का है ना। आई वॉज वेरी एंग्री विद दैट पर्सन हु slapped me at that moment. And I was like, ठीक है, you want me to write fast, I will write fast, but you will have all difficulty in reading my handwriting. Such a stupid thing had I. वो बचपन में एक ऐसी फीलिंग आ गई थी। तो ऐसी एक कोई फीलिंग होती है जो हमको चेंज कर देती है पूरी तरह से, हमको उसको ढूंढ के निकालना है। एंड देन वी हैव टू ओवरकम दैट। एंड देन लेटर ऑन जब मुझे समझ में आया कि ओ यार, उसने तो मेरे भले के लिए ही किया था जो थप्पड़ पड़ी थी, देन आई स्टार्टेड राइटिंग नीट। आज मेरी हैंडराइटिंग ठीक ठाक है, अच्छी नहीं, ठीक है, राइट। एवरीवन कैन रीड दैट हैंडराइटिंग, बट दैट वाज द मोमेंट जब मुझे बहुत बुरा लगा था। नाउ आपको मालूम है आपके जैसे सिर्फ आप ही हैं। कई बार हमारी फीलिंग ऐसी होती ना कि हमारी जरूरत ही नहीं है यार, हम बेकार ही हैं, मतलब लाइक क्या है, मैं क्या हूँ,
मैं क्या हूँ, कुछ नहीं, मुझ में इतना कुछ नहीं है। ऐसी कई बार, कई सबको होती है, मैंने बोली कुछ लोगों को होती है, उनके लिए ये स्पेशल पोर्शन है। फाइंड वन लाइक अदर, ये पोर्शन उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि हम यूनिक नहीं है, हम में कुछ खास चीज नहीं है, राइट। नेचर में बहुत सी चीजें हैं। पहली चीज तो आप फ्लावर्स देख सकते हैं, लीव्स देख सकते हैं, स्टोन्स हैं, लकड़ियां हैं। ट्राई टू फाइंड टू एग्जैक्ट सिमिलर थिंग्स इन द नेचर। अब मैंने हिरन का एग्जाम्पल देके रखा हुआ है। सारे हिरन हमको एक जैसे ही नजर आते हैं, सारे शेर हमको एक जैसे नजर आते हैं, बट कोई भी दो शेर या कोई भी दो हिरन कभी भी सेम नहीं होते, उनके स्पॉट्स अलग अलग जगह पे होते हैं। ऐसे ही हर चीज बहुत मायने रखती है। आपको बोला गया है फाइंड टू एग्जैक्ट सिमिलर थिंग्स इन द नेचर, लाइक टू सिमिलर फ्लावर। आप दो जासवंत के या दो का क्या बोलते हैं, किसी भी दो फूल को एक साथ लेके आइए और मुझे बताएंगे कि हाँ देखो टीचर एकदम सेम है, एंड देन आई विल से नो, सी देम नाइसली, ध्यान से देखो उनको, उनमें डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। वो 5 पत्ती के व्हाइट फूल होते हैं ना, वो भी दो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें भी कहीं ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। Did anybody collect two exact similar things? Answer yes or no. I know it will be no. आप ढूंढ के लाइएगा मेरे लिए अगर मिलता है तो। Why? Because नेचर में हर चीज यूनिक बनी है, हर चीज की वैल्यू है। Do you think this also applies to human beings? जैसे ही दो पत्तियां, दो फूल, दो पत्थर। Somebody in the last class when I was taking the same class told me that teacher मैं दो एक जैसे पत्थर लाके दिखा सकता हूँ। मैं बोला बेटा वो लाके दिखाओ, पहली चीज तो पॉसिबल नहीं है, या तो उनके वजन में फर्क होगा या कुछ ना कुछ होगा। तो उसने मुझे एग्जांपल दिया, टीचर नदी के पास जाएंगे ना तो एक ही जैसे शेप के बहुत सारे पत्थर मिलते हैं। मैंने बोला शेप सिमिलर रहेगा बट साइज सिमिलर नहीं रहेगा। अगर शेप और साइज भी सिमिलर हो गया तो उनमें आने वाले गड्ढे जो रहेंगे वो अलग अलग अलग। हर एक चीज अलग है, वैसे ही हर एक ह्यूमन बीइंग अलग होता ही है। आपको लिख के निकालना है। आपने कलेक्शन करके देखा, डिड यू फाइंड एनी टू थिंग्स सिमिलर? ढूंढ लो सिमिलर दिखता है क्या। तो आंसर नो या यस। अगर यस है तो आप उस चीज को चिपका के देखो या फोटो खींच कर दिखाओ। और अगर डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है? बिकॉज नेचर में दो चीजें एक जैसी हो ही नहीं सकती। वैसे ही दो ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे नहीं हो सकते। बहुत छोटी सी चीज, बहुत समझदारी वाली चीज है। अब एक एग्जाम्पल के लिए हम अपना हाथ देखते हैं। आपके हाथ में कितने फिंगर्स हैं? जल्दी बोलो। Why? 5 है। आपके भी हाथ में 5 है। वेरी गुड। मेरे भी हाथ में 5 फिंगर्स है। और कोई है जिसके 6 है, 4 है? Yes, teacher. Four fingers. 4 फिंगर्स? किसके 4 फिंगर्स है? Teacher, मेरे फ्रेंड का है। अच्छा, उसके पास एक फिंगर कम है। ओके ओके। तो देखो जनरली ऑन एन एवरेज सबके 5 फिंगर्स होते हैं। अगर हम उसमें से एक भी फिंगर गायब कर दें तो हाथ में ताकत रहेगी क्या? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ट्राई टू राइट विद ए पेन विदाउट यूजिंग योर इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है भाई, बताओ तो जरा। विच इज योर इंडेक्स फिंगर? Any one of you? Index finger. Which finger is called index finger? Finger near thumb. Very good. Finger near thumb. That can be called as first finger. After the thumb, the finger that is there is called index finger. And the next one is the big finger, which is called middle finger. Yeah. If you don't use this two finger, can you write? Can you hold a pen and write? Come on, let me know. Try करके देखो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते?
स्पीक आउट बच्चा. No. No. No, teacher. पक्का? If we practice also, we cannot write. Try to hold a pen. We cannot hold a pen if we are using the remaining two fingers and thumb. Just try it once. So you come to know that these two fingers are extremely important, isn't it? We'll do one more experiment. Take a small piece of rope and tape and tie it to your thumb. Right? क्या किया? Small piece of rope या tape ले लिया. Tie your thumb to the rest of the fingers. पूरे के पूरे fingers के साथ thumb को बांध दिया. Now try to pick a small article, right, which is lying on the ground. या एक झाड़ पे चढ़ के देखो, या एक heavy chair को उठा के देखो. उठा पाओगे? उठा पाओगे? आपने अपने अंगूठे को अपनी चारों उंगलियों के साथ बांध दिया. उसके बाद आप कोई चीज उठा पाओगे क्या उस हाथ से? No, teacher. No. क्यों? No. क्योंकि हमारा थंब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारी बाकी फिंगर्स इंपॉर्टेंट है. Isn't it? वैसे ही हर इंसान जो नेचर में है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है. आपको अपनी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा. आप भी किसी ना किसी चीज के लिए बने हैं. आज आपको समझ में नहीं आ रहा आप किस चीज के लिए बने हैं, कल आपको जरूर समझ में आएगा कि आप किस चीज के लिए बने हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ फेमस पर्सनालिटीज को देखते हैं. ये कौन है? Dr. APJ Abdul. Dr. APJ Abdul Kalam. यस, कितनी छोटी जगह से बन के आए हैं. ये कौन है? Lata Lata Mangeshkar. लता मंगेशकर जी. क्या करते हैं लता मंगेशकर जी? Teacher singing She world sings. Singing. voice. सिंगिंग करते हैं. बहुत अच्छा गाना गाते हैं. अच्छा, ये तो पहचानते हैं. अमिताभ बच्चन. अमिताभ Amitabh बच्चन. Bachchan. और ये God of Sachin Tendulkar. Tendulkar. गॉड ऑफ क्रिकेट ऐसा बोलते हैं इसको, सचिन तेंदुलकर को. हाँ, अब मजेदार किस्सा देखो. अब अगर सादा सादा बात करो तो सचिन तेंदुलकर को क्या काम आता है? Teacher cricket. Cricketing. एक बैट और एक बॉल. बॉल आया, उसने बैट को मारा. बॉल आया, उसने बैट से मारा. अब इसको अगर जनरलाइज्ड क्रिकेट छोड़ दो, समझने की कोशिश करो ये करता क्या है. ये बंदा करता क्या है? पूरी जिंदगी इस आदमी ने क्या किया? एक बैट को पकड़ा और बॉल को मारा. बैट को पकड़ा, बॉल को मारा. उसके अलावा कोई काम नहीं किया इसने बड़ा. जब ये 12th में था, इसका न्यूज आया था फ्रंट पेज पे कि सचिन तेंदुलकर फेल हो गया बोर्ड एग्जाम में. आप समझ सकते हो? तो इसमें तो दुखी हो जाना चाहिए ना. मैं तो 12वीं में फेल हो गया, मैं तो बोर्ड के पेपर नहीं लिख पाया, मैं तो पास ही नहीं हो पाया. इसको एक ही काम आता है, पर उसने वो काम जो उसको आता है ना, उसने उसको शिद्दत से किया, जान डाल के किया, और इतना सुंदर किया है जितना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाया. सेम वे लता मंगेशकर जी, सेम वे अमिताभ बच्चन जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी. जो काम किया उसको इतने शिद्दत से किया कि हम कहीं से कहीं पहुंच गए. Isn't it? हम में क्या कमी है? हम अपने एक काम को पकड़ के नहीं चलते. हम 10 काम करने जाते और एक भी ढंग का नहीं कर पाते. हम एक काम को ढंग से करना सीख जाए ना तो हम भी फेमस बन जाते हैं. अमिताभ बच्चन इज अमिताभ बच्चन बिकॉज when he came in movies he was told कि तुम्हारी हाइट इतनी ज्यादा है, तुम्हारी आवाज इतनी खराब है, ऐसी आवाज है, तुम तो कभी हीरो नहीं बन सकते. उसकी पहली पिक्चर जो है वो पिक्चर की एक्टिंग देखो, ऐसा लगता है कि एक्टिंग कहाँ कर रहे हैं, उनको एक्टिंग करना ही नहीं आता है. बट उन्होंने उसी चीज को वापस करके 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 इतना परफेक्ट कर लिया कि वो आज लेजेंड्स बन गए. हम क्या करते हैं एज एन, हमारी क्या स्ट्रेंथ है,
हमारी आइडेंटिटी में हमको वो ढूंढ के निकालना है और हमको उसी चीज को बार 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 करके उसमें परफेक्शन लेनी है, isn't it? तब जाकर हम फेमस बनेंगे। हम क्या करते हैं, हम किसी एक चीज को सिंसियरली करते ही नहीं। लता मंगेशकर जी सिर्फ गाना ही गाती है, that doesn't mean she doesn't cook or something like that, but उनका गाने में उन्होंने अपने भगवान देखे, उसके अंदर उन्होंने अपने आप को इतना डाल दिया कि वो उस चीज को ही परफेक्शन के साथ करते चले गए, इतनी सुंदर परफेक्शन के साथ करते चले गए कि आज उसी में उनकी आइडेंटिटी है, isn't it? पॉइंट्स जो ध्यान रखने के लिए, एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक एंड हैज ए डिफरेंट स्ट्रेंथ। आपको समझना पड़ेगा कि हर एक के पास अलग अलग स्ट्रेंथ है। हमारे जैसे 5 फिंगर्स जो हैं, वो हमको हाथ को अगर पूरा यूज करना है तो हर फिंगर की जरूरत है, उसी तरह से हमारे में भी यूनिकनेस है, राइट? एंड टू मेक प्रोग्रेस एंड लिव happy life in society, we are supposed to recognize our potential, right? हमारे हाथ में हर उंगली का एक पोटेंशियल है, उसी तरह से हमारा भी पोटेंशियल अगर हमने पता कर लिया तो हम जिंदगी बहुत सुंदर तरीके से जी सकेंगे। आई बात समझ में? सो अब जो कोई ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, मुझसे वो बहुत अच्छा है, तुमसे वो बहुत अच्छा है, बिकॉज उसने उस चीज पर मेहनत करी है जो उसको लगता है उसकी स्ट्रेंथ है। आपको लगता है आपकी कोई स्ट्रेंथ है तो आप उस पे काम कीजिए। आई बात समझ में? नाउ somebody has to read this loudly. कौन पढ़ता है इसको? Teacher. Teacher, I can Okay, read. any one of you. Teacher, can I read? Yeah, go ahead. Everybody has some unique combination of physical features, qualities, traits, beliefs. Right. Everybody has got some unique combination of physical features. कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है, मेरी हाइट कम है, मैं गोरी नहीं हूँ, and then you use all the filters, right? I don't remember कि अब्दुल कलाम जी के पिक्चर में कभी फिल्टर यूज करके मैंने उनका पिक्चर देखा, या लता मंगेशकर जी को कभी फिल्टर यूज करने की जरूरत पड़ी, बिकॉज दे नो दे आर यूनिक। क्यों हमें फिल्टर चाहिए? क्यों हमें अपनी शक्ल को चेंज करना है? क्यों हमें बड़ी बड़ी आंखें फिल्टर वाली यूज करनी है जब हम यूनिक है ना? लव द वे यू आर, राइट? फिजिकल फीचर्स हमारे खास हैं, हमारी क्वालिटीज जो हैं वो हमारी क्वालिटीज, हमारे ट्रेड्स जो है, like I can speak beautifully, I know I can speak beautifully, that's my trade and that is my belief that I can motivate my students very beautifully. So I want to motivate my students every time, every moment I teach. In between I will start motivating you in between. It is very important. So everyone has got a unique combination of physical features. I know I'm fat, yes, but that doesn't mean that I will just reduce myself and become something else. No. If I'm fat and I'm healthy, it's okay. If my color, if somebody's color is dark or somebody's height is less, okay, fine. It is the physical feature which I have got. But I can develop my qualities, my traits, my belief, my language, my other behavioral patterns. You have different feelings. If you change them, right? These together form a self-identity, right, of that person. Extremely important. These together form self-identity of a person. Very, very important. That is why उसने blink किया, right? बहुत important चीज है बेटा ये, आपकी self identity. अब आपकी identity वाला एक पेज आपको तैयार करना है. I am your name, child of parents name, sibling of your brother and sister's name. I like, आपको 3 कौन सी अच्छी चीजें लगती है? I don't like, आपको 3 कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगती? I hate, what you hate. I have dash to physical behavior or traits. Like मैं बहुत हाइट अच्छी है, दौड़ता हूँ, या मेरा कलर डार्क है. Some 2 features which you feel, या and 2 behavioral traits. मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत हाइपर हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, एनीथिंग.
2 you will write. I want. आपके जिंदगी में आपको 3 क्या चीजें चाहिए? I am scared of. आप कौन से एक चीज से बहुत डरते हो? I dream of. आपके ड्रीम्स क्या है? I am determined to. I am determined to do something. Like when I was in 8th standard, I decided that I'll become a maths teacher only. When I got engineering college ka admission also, I did not take that engineering college ka admission because I was determined to become a maths teacher. There's a big story behind that. I'll tell you that one day. Right? And I'm proud of. You're proud of one thing. Right? You should know what you are. Your identity. Like this ant. Right? छोटी सी है, पानी के इसको धक्का मार रही है, राइट? आपको मालूम है चींटी इतनी छोटी सी होती है, और आज की डेट में अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल देखा जाए तो वो चींटी है, बिकॉज वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा के जा सकती है, और हमको लगता है चींटी में तो कोई वैल्यू ही नहीं है. दैट्स नॉट द केस. Ants are extremely organized colony. They are the strongest animals. They don't have that much big size, but they can. अगर हाथी की भी हाइट जो वेट है उसको डबल उसके ऊपर डाल दिया जाए तो हाथी मर जाएगा, बट एंट अपने वेट से 10 गुना ज्यादा वजन उठा के चल सकती है. So ant is equally important. We should understand this. What we are, we have to understand. Every human being is mixed bag with some strength and some areas of development. It is important to identify your strength and areas of development. You have to identify what are your strengths and what are the areas where you are supposed to develop. While it is necessary to work on your areas of development, it is even more important to work on your developing the strength or developing the areas of your strength. It is important to identify opportunities and challenges which are also unique to each individual. आपको करना क्या है? आपकी स्ट्रेंथ्स ढूंढ के निकालनी है, आपकी वीकनेसेस ढूंढ के निकालनी है, और आपको वो एरिया ढूंढ के निकालनी है जहां आप डेवलप कर सकें. Like I told you, no, my teacher scolded me for not writing fast. I started writing fast and then started writing dirty because I felt she has to read my answer, she has to give the marks. So she is troubling me, I am troubling her. That was very wrong actually. Later on I realized this is wrong. When she told me later on कि नहीं देना, देखिए गलत कर दिया बेटा आपने, right? Then I realized that I have got a very good capacity to speak. I can comprehend, talk to people very nicely. That is my strength. That's the area where I should develop more. And I can earn from that area. You cannot do 10 different things together. You have to do one thing in a different manner. Right? A particular manner. 10 चीजें करके मिक्स बैग मत हो जाओ. Right? अब आप सेल्फ रिपोर्ट बनाएंगे. Criteria, strength, and I need to improve. Good in language or maths, not good in social science. ऐसा मैंने लिखा है because I am not good in social science. I can write poetry and stories. I can cook well. I face difficulty. Like आपकी difficulties किस प्रकार से? ये portion आप fill करेंगे. इस प्रकार से. Don't copy the same thing, huh? Teacher, I have heard about one teacher analysis. That is teacher SWOT analysis. S for strength, I know. W for weakness, O for opportunities, and T for threat. And teacher, what are you Yes. telling? It's similar to that. Yeah, it is SWOT analysis only. This is SWOT analysis only, but without telling you the name. Right? Knowledge, skill, attitude related to social, economical condition. This is what you are supposed to write. And with this, we end our chapter. Hope you enjoyed the chapter and you will be making a nice presentation on it. Right? Yes, Was it teacher. interesting? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, Let's stop teacher. recording. Yes, teacher.
I will stop recording and this much I will put in YouTube for you for reference.